Good morning, students. How are you? Myself, Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss some questions from the three-dimensional geometry. And I think in the last lecture we had solved various questions from the direction ratios and the direction cosines. And in this lecture, we are going to solve some questions from the very new chapter and very new concept, and that is the straight line in space. That means एक स्पेस में स्ट्रेट लाइन होता है और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट formulas are going to be used. Okay, and that will be discussed in this lecture. Very important lecture, very important. Okay, just you can give the 100 star to this lecture, and every year at least one question is to come from the straight line in space. Okay, so this it is going to be very much important lecture. Just if you want to just get the good marks in this three-dimensional geometry, if you want to get the sufficient sufficient conveniences from this three-dimensional geometry, you should follow this you should follow this lecture, you should view this lecture. And if you like my videos, then please subscribe, like and share my channel. And without wasting our time, just start our first concept, and that is straight line in space for today's lecture. Okay, straight line in space. Okay, just write straight line in space. Straight line. Okay, so class 11th maybe in class 11 we had got various concepts and various theories, formulas regarding the straight line. So in this three-dimensional geometry, we will discuss the same thing for the straight line, but here in this three-dimensional geometry, only one axis will be increased, and that is z. Okay, so that means what about the formulas you have got in class 11 from the straight line chapter, that was for the two-dimensional geometry. Okay, so yahan par hoga for three-dimensional geometry, because it is written, you can see, in space. In space, you can see space. स्पेस मतलब क्या होता है? हैंगिंग पोजीशन में, दैट मींस यहां पर. ओके, हवा में होता है. तो दैट मींस ये क्या थ्री डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, यहां पर तो टू डायमेंशनल तो आएगा नहीं. स्पेस में टू डायमेंशन तुम कहां से लाओगे रे भाई? ठीक है ना. तो दैट मींस थ्री डायमेंशंस. तो whenever just you will be discussing this three dimension in space, then you need to introduce two formations for different for the different structure of the straight line. And that is one Cartesian Cartesian form, and second one vector form. Second one आपका क्या होता है? Vector form. Just remember this thing. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले जो एकदम बेसिक फॉर्मूला हम लोग को मिला था स्ट्रेट लाइन का, बेसिक फॉर्मूला क्या था? जस्ट राइट वन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ the straight line, equation of the straight line passing through two points, x1 comma y1 comma z1. Okay, and x2 comma y2 comma z2. z2 is, फॉर्मूला क्या था? x minus x1 by x2 minus x1. Do you remember this formula? Y minus y1 by y2 minus y1. Then z minus z1 by z2 minus z1. ये तो क्लास 11 का फॉर्मूला है. क्लास 11 में हम लोगों ने किया है थ्री डायमेंशन में, और टू डायमेंशन में यहां तक किया है ना, और ये पार्ट एक्स्ट्रा हो गया बिकॉज इट इज द थ्री डायमेंशनल फिगर. ओके, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस. So according to the direction ratio concept, as I discussed in the first class of the direction ratio and the direction cosines, that
How can you find the direction ratio and the direction cosines here? Direction ratio means what? The differences between the coordinates of the points. तो x2 minus x1 को हम लोग क्या लिखते हैं? a, y minus y1 उसको हम लोग that means y2 minus y1 को क्या लिखते हैं? b, और z minus z1 by उसको क्या लिखते हैं? c. Do you remember this thing? Do you remember? Okay, so ये जो है ना, ये आप लिख के रखिए, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन, ये कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं उसको थोड़ा लेमडा कंसीडर कर लो, लेमडा, तो यहां से देखो तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, x इक्वल्स टू a लेमडा प्लस x1, y इक्वल्स टू b लेमडा प्लस y1, z इक्वल्स टू c लेमडा प्लस z1. Okay, so as you all know, the values, combining the values of x, y, z, one point will be created. Okay, so after getting the point in the Cartesian form, how can we express this point in the vector form? I told you these things. सिर्फ तुम्हें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ i j k लगा देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिखते हैं ये? हाँ देखो, यहाँ पर ये x का वैल्यू है कि नहीं, ये क्या है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, और ये z का वैल्यू है। नाउ अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, वेक्टर फॉर्म, अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है? आई जे के, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आई कैप होता है, एक यूनिट वेक्टर आपको कंसीडर करना पड़ता है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जे, और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में के। तो वेक्टर फॉर्म जब आप कंसीडर करेंगे तब ये जो है ना, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा? यहां पर तो एक्स वाई जेड का तो वैल्यूज तुमने निकाला है, तो क्या होगा यहां पर? x1 a लैम्डा आई कैप प्लस y1 प्लस b लैम्डा जे कैप, ओके, प्लस z1 प्लस c लैम्डा के कैप, राइट। तो यहां पर जो है ना, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप इक्वल्स टू, उसको अगर मैं थोड़ा ठीक तरह से सुंदर करके लिखूं, मतलब सुंदर करके फाउंडेशन लगाना है, फाउंडेशन लगा के जो है ना, फाउंडेशन लगा के क्या होगा, जैसे कोई भी सफेद हो जाता है, कोई भी सुंदर हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये भी फाउंडेशन मुझे लगाना है, ठीक है, फाउंडेशन लगा के उसको सुंदर बनाना है, देखने में बहुत डर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, देखो, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप एक ब्रैकेट में रखो, फिर उसके बाद a लैम्डा प्लस b, अच्छा a लैम्डा आई कैप, नो, a लैम्डा आई कैप, b लैम्डा जे कैप, c लैम्डा के कैप, राइट। तो यहां से देखो तो क्या लिखेंगे, x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, उसको एक ब्रैकेट में, और यहां पर जो है ना लैम्डा को कॉमन ले लो, क्या होगा बाकी, a आई कैप, b जे कैप, और यहां पर a b c क्या है, हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को, ये जो आपको मिला है ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये जो चीज आपको मिला है ना, इसी को ही वेक्टर फॉर्म में, ये जो चीज है ना, ये इसको आर से डिनोट किया जाता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू,
ये जो है ना, ये क्या होता है, ये पॉइंट होता है x1 y1 z1। x1 y1 z1 आपने क्या लिया था, इट इज द पॉइंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको पता हो, ठीक है, और उस पॉइंट का अगर आपने ये वेक्टर फॉर्म निकाला है, दैट मींस यू कैन सी इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसको ए वेक्टर नाम दिया जाता है। ठीक है, ए नाम दोगे तुम, कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है उसको ए नाम दोगे, प्लस लैम्डा। ठीक है, और ये जो है ना, ये क्या वेक्टर है, देखो एबीसी यहां पर डायरेक्शन रेशियोज है, दैट मींस ये डायरेक्शन रेशियोज रिलेटेड वेक्टर है। डायरेक्शन रेशियो किसका, डायरेक्शन रेशियो, ये जो स्ट्रेट लाइन तुमने लिया है इसका डायरेक्शन रेशियो। या फिर ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब यहां पर हम लोग जानते हैं अगर दो स्ट्रेट लाइन ऐसा है, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होगा इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर एक चीज हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 है ना, x2 माइनस, ये डायरेक्शन रेशियोज है। ये सेम डायरेक्शन रेशियो दैट मींस एबीसी किसका होगा, इस लाइन के साथ जो जो लाइन पैरेलल्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, उन लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो ये सभी होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैरेलल लाइंस हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइंस का क्या होता है? ये देखिए, मतलब डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा, है कि नहीं। तो पैरेलल लाइंस का हमेशा याद रखिएगा, पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज जो है ना वो सेम रहेगा या फिर प्रोपोर्शनेट रहेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेट रहेगा। ये हम लोग क्लास 11 में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच क्या रिलेशन है, बट यहां पर हमेशा ये याद रखिएगा दो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होगा या फिर प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहां पर देखिए डायरेक्शन रेशियो, ये उसको किससे डिनोट किया जाता है, बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा जो पॉइंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसको ए से डिनोट करना है, जो डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसको बी से आपको डिनोट करना है। और ये जो एक्सिस वेक्टर्स हैं दैट मींस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको एक्सिस वेक्टर बोला जाता है, उसको किससे डिनोट किया जाता है, आर वेक्टर से। एंड हियर यू हैव गॉट द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन स्पेस। ठीक है, हाँ, तो यही इस चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, नोट देके लिखो, नोट, नोट, मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through the point, passing through, passing through the point, एक पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 and parallel to the line, parallel to the line, कोई भी एक लाइन के साथ पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन, having direction ratios a b c is r vector equals to a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, जस्ट मुझे बोलिए। ठीक है, बात एक ही है। देखो, हाँ, देखो x1 y1 z1 एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, और ए बी सी डायरेक्शन रेशियो, तो ये डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का होगा या फिर इस लाइन के साथ जो जो लाइन पैरेलल होगा उस पैरेलल लाइंस का भी तो डायरेक्शन रेशियो ये है। तो ये लाइन भी तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी एक स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रहा है,
x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रहा है, और डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल लाइंस का है, तो हम लोग इसी स्ट्रेट लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, दैट मींस इट इज योर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये है वेक्टर फॉर्म और ये है कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म है, उसको आप मार्क करके रखिए ऐसे। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, ये भी कार्टेशियन फॉर्म ही है, इसको भी आप मार्क करके रखिए। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट जाएंगे, सेकंड कॉन्सेप्ट। नाउ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देखो। पॉइंट नंबर 2 है, हियर हियर लाइन वो सेमी होगा। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, equation of straight line, equation of straight line passing through the points, passing through the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2, okay, is क्या है, x माइनस x1, जो कुछ देर पहले मैंने लिखा है x2 माइनस x1। ठीक है, फिर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, फिर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये है कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर उसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, दैट मींस यहां पर डायरेक्शन रेशियो लेकर डील नहीं करना है, दैट मींस यहां पर मुझे डायरेक्शन रेशियोज नहीं लिखना है। अगर मैं सिर्फ पॉइंट्स लेके ही डील करूं और पॉइंट्स लेके ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस बनाओ, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, हियर इट इज माय क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर आप वेक्टर फॉर्म निकालना चाहें यहां पर, इफ यू वांट टू फाइंड अ वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म यहां पर कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन यही है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो वही एक काम करते हैं, x माइनस x1 पाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो x माइनस x1 इक्वल्स टू, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x2 माइनस x1 इंटू लैम्डा, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना ऐसे, है? तो यहां पर y माइनस y1 क्या होगा, y2 माइनस y1 इंटू लैम्डा, फिर z माइनस z1 इक्वल्स टू z2 माइनस z1 लैम्डा, लिख सकते हैं ना ऐसे, है कि नहीं। तो तो देखिए, यहां से x इक्वल्स टू, यहां से x इक्वल्स टू क्या होगा, सो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 माइनस x1 लैम्डा। ठीक है, यहां से y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 लैम्डा। यहां से देखो z इक्वल्स टू z1 प्लस z2 माइनस z1 लैम्डा। ठीक है, तो यहां पर तो ये देखो x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू मिला, दैट मींस यू हैव गॉट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हियर। x और y और z का वैल्यू मिलके ही तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाता है, और पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेक्टर फॉर्म नाउ,
ठीक है, तो उसको तो वेक्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, आई जे के लगा दो उसके साथ, ठीक है नहीं। तो दैट मीन्स वेक्टर फॉर्म, अगर मैं मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एक्स आई कैप, ठीक है, वाई जे कैप, जेड के कैप, राइट, इक्वल्स टू, अब हर एक के साथ आई जे के मल्टीप्लाई मार दो, ठीक है, x1 x2 माइनस x1 इंटू लेमडा, ठीक है, ये आई कैप लगाओ उसके साथ, फिर y1 प्लस y2 माइनस y1 लेमडा, इसके साथ क्या लगाना है, जे कैप, ये y का वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है, प्लस z1 प्लस z2 माइनस z1 लेमडा, पूरा ब्रैकेट दो के कैप, ठीक है। अब उसको थोड़ा सजा के लिखेंगे। तो मैंने बोला था ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को कैसे डिनोट किया जाता है वेक्टर फॉर्म में, आर, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू, अगर थोड़ा यहां पर थोड़ा स्प्लिट करके लिखूं, देखो x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, देखो एक पॉइंट का तो मिल गया, मतलब ये एक दो तीन, ये तीन मिलके एक फॉर्मेशन बना लिया है। अब बाकी बाकी यहां पर लेमडा को अगर मैं कॉमन लूं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, फिर उसके बाद z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, यहां पर देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू, एकदम एकदम सिंपल है, जस्ट सिंपल थिंकिंग करो, देखो आंसर मिल जाएगा। तो ये जस्ट मैं डिराइवेशंस कर रहा हूं कि कैसे ये फॉर्मूलाज बनाया गया है, क्योंकि बुक्स में देखना कि डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, ये सिर्फ ये जो है ना, ये मेरा प्रोसेस है, ये मैं इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये जो मतलब बुक पे देखो कि ये बहुत डर लगता है, दैट मींस यू विल बिकम स्केर्ड अबाउट द derivation, about the formula structure, what is this, what type of formulas are there in this three dimensional geometry, ऐसा कुछ नहीं है, these are all very simple formulas, just we have to represent these formulas in a proper way, okay। अच्छा, यहां पर क्या है, x1 आई कैप, y1 जे कैप, और ये z1 के कैप, उसको रखो, बाद में सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, यहां पर प्लस लेमडा, ठीक है। अच्छा, यहां पर कितना कितना पॉइंट है, देखो x1 y1 z1, x2 y2 z2, दो अलग अलग पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट का जो वेक्टर फॉर्म है, उसको अगर मैं ए वेक्टर नाम दे दूं, फर्स्ट पॉइंट, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, x1 आई कैप, ठीक है, y1 जे कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, और उसको अगर मैं बी वेक्टर नाम दे दूं, दूसरा दूसरा पॉइंट जो है उसको बी वेक्टर नाम दे दो, x2 आई कैप, फिर y2 जे कैप, और ये z2 के कैप, ठीक है। नाम तो दे ही सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं, ए और बी देना है आपको, दूसरा कुछ भी देना है तो दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सीरियल वाइज ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसा कोई मैटर तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो जब हम लोग यहाँ पर ये b माइनस ए करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर ये देखिए, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। अच्छा, आप एक काम करिए, तो यहाँ पर b माइनस ए है, इसका आंसर थोड़ा निकाल के देखिए तो कितना होता है b माइनस ए है, b माइनस ए, दैट मीन्स इससे ये माइनस कर दी, देखिए तो ऐसा होता है कि नहीं, x2 माइनस x1 आई कैप, देखिए तो x2 माइनस x1 आई कैप, फिर y2 माइनस y1 माइनस y1 जे कैप, देखिए तो बी से ए माइनस करना है, दैट मींस इससे ये माइनस करना है, दैट मींस ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं। और आर इक्वल्स टू, इसके जगह क्या लिखेंगे, ये तो भाई ए वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस लेमडा इनटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर,
ये होता है वेक्टर फॉर्मेशन एक स्ट्रेट लाइन का। अब बोलोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर्मेशंस? आपने फॉर्मेशन नंबर 1 भी जो है ना, फॉर्मूला नंबर 1, उसको भी आपने यही कॉन्सेप्ट से आपने निकाला है, ठीक है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो 2 नंबर है, उसको भी आपने सेम कॉन्सेप्ट यूज करके निकाला है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू कॉन्सेप्ट्स? अच्छा, फर्स्ट फॉर्मूला में जो है ना, उसमें 2 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट जो फॉर्मेशन है उसमें 2 पॉइंट जरूरी नहीं है, कोई भी एक पॉइंट आप देख सकते हैं। हाँ हम लोग, अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो फर्स्ट उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है। फर्स्ट जो पेज है उसमें देख लेना कि जो लास्ट में हम लोगों ने लिखा है ना, एक स्टेटमेंट देखना, एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, the equation of the straight line passing through the point x1 y1 z1 and parallel to the line having the direction ratio abc, तब उसका जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 पॉइंट जरूरी नहीं है, हाँ। सो एक पॉइंट पता हो और डायरेक्शन रेशियो पता हो, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला नंबर 1। और यहां पर जो है डायरेक्शन रेशियो जरूरत नहीं है। इफ यू नो द टू पॉइंट्स, इफ यू नो द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट 2 पॉइंट से पास हो रहा है, देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलास। इट इज द कार्टेशियन फॉर्म, फर्स्ट वन इज द कार्टेशियन फॉर्म, ओके, एंड सेकंड वन इज द वेक्टर फॉर्म, ओके, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है, जस्ट उसको सिंपल तरीके से आपको सोचना है, सिंपल तरीके से सोचना है। सिंपल तरीके से सोचेंगे तो सिंपल लगेगा, है कि नहीं। तो यहां पर मैंने बहुत सिंपल करके उसको आपको रिप्रेजेंट किया है। आप दूसरी किसी बुक या फिर किसी दूसरे किसी सोर्सेस में मत जाइए, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स एज सिंपल एज पॉसिबल, okay, so that you can get the clear idea from that concept or from that topic as well, okay। तो मुझे लग रहा है कि आप ये समझ जाएंगे, आराम से समझ जाएंगे। इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम्स, इफ यू विल हैव एनी क्वेरीज, जस्ट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क मी इन WhatsApp 8473955827. it is my WhatsApp number. You can ask me any queries or any doubts if you have, okay। सो यही 2 कॉन्सेप्ट्स आज मुझे डिस्कस करना था। ये 2 कॉन्सेप्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय। जय हिंद। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, शेयर माय चैनल, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय।